Hello everyone, welcome back to your channel Botany Tricks. As most of you must be aware that we have started with the NCRT series, and the main motive is obviously that your exam is very nearby, and we all are aware that 80 to 90% of the paper comes from the NCRT. So I'm trying my best that you get each and every question formed from each and every line. So the topic which we are dealing today is the kingdom Monera from the chapter biological classification. Now there are basically five kingdoms which were given by R.H. Whitaker. The first being the Monera, followed by Protista, fungi, plantae, and animalia. We are dealing with the NCRT based questions from the Monera only. Now, there are two requests which I would like to place. The first being, if you have not subscribed my channel, then please subscribe so that you can get all the latest updates and the series which I am talking about. And the second being that whenever you are solving the questions, so please, before I tell you the answer, you need to write it down on a separate sheet of paper, and please comment your score in the comment box so that I can get an analysis of your performance. Okay, now let's start with the questions. First question is that who among the following was the first person to classify organisms? इन सब साइंटिस्ट में से ऐसा कौन सा पहला था जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था? The options we have is Leeuwenhoek, Aristotle, Linnaeus and Pasteur, and the correct answer would be Aristotle. Now you also need to remember कि इस एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था, तो डैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी. जिन ऑर्गेनिजम्स के पास आरबीसी है उन्हें कहा गया था इनाइमा, एंड जिनके पास आरबीसी नहीं है दे वर कॉल्ड एज अनाइमा. सो द मेन इशू वॉज दैट अनाइमा में प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस सारे आ गए थे बिकॉज इनके पास आरबीसी नहीं है, एंड इनाइमा में मेनली वी वर द मैमल्स. So the next question we have is that what is the drawback of Linnaeus classification? Linnaeus ने जो classification दिया था जिसमें उसने दो kingdoms बनाए थे, one was kingdom Plantae and one was kingdom Animalia, तो उन दोनों classification के अंदर what was the drawback? इसे क्यों accept नहीं किया गया? The first option is that he did not distinguish between prokaryotes and the eukaryotes. Second, he did not distinguish between unicellular and multicellular. Third, he placed plants and animals differently. And fourth, that is both A and B. So the correct answer would be both A and B. रीज़न बीइंग, अब जब उसने सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स बनाए थे तो व्हाट ही डिड कि उसने बैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस इन सब को एक साथ प्लेस कर दिया विच वॉज अंडर प्लांटे. तो ऑब्वियसली यूनिसेलर मल्टीसेलर भी ख़त्म हो गया बिकॉज बैक्टीरिया बीइंग यूनिसेलर, फंजाई बीइंग मल्टीसेलर, एंड सेम गोज विद प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. So the correct answer would be D. Third question. The criteria not used by R.H. Whitaker for classification was. Now R.H. Whitaker ने जो classification दी थी, जो 5 kingdom classification हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसने कुछ क्राइटेरिया की बेसिस पे दिया था. ना द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ऐसा कौन सा है जो कि उसमें इंक्लूड नहीं होता है. तो वी हैव सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. The correct answer would be mode of respiration. अगर यहाँ पर mode of reproduction होता तो this would have been the correct option. But respiration के basis पे in fact किसी ने भी classification नहीं दिया था. ठीक है, so that would be a correct answer. Next, earlier bacteria, blue-green algae, mosses, fungi were placed under plants because first option, they have similar cell structure. Second, they have same mode of reproduction. Third, they all are autotrophs. And fourth, they all have cell wall. Okay, अब इसको हम लोग ऑप्शंस कैंसिल करते हुए चलते हैं. ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिमिलर सेल स्ट्रक्चर. नाउ बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोट एंड फंजाई इज़ अ यूकैरियोट, तो ऑब्वियसली दिस कांट बी अ करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड, दे हैव सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Bacteria में there are only 2 modes of reproduction, one being the asexual, second being the genetic recombination. That means that they do not form gametes. While इसके अलावा जितने भी हैं सब के सब gametes form कर रहे हैं, so obviously this is not our answer. Third being that all are autotrophs, so fungi is clearly an exception. And the only correct answer we have is all have cell wall.
सी बेसिकली देर आर टू वेज ऑफ अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, या तो आप सीधा सीधा आंसर टिक कर दो, या कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप बाकी ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर दो और सही आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 5 kingdom classification, Chlamydomonas is placed in. Now, Chlamydomonas is basically a unicellular algae. It's a unicellular green algae. But R.H. Whittaker ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, तो व्हाट ही डिड कि उसने सारे यूनिसेलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया. सो क्लैमोडोमोनास को भी हम लोगों ने कहाँ प्लेस किया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर. इसके और जो साथी आएंगे दैट वुड बी क्लोरेला ऑल्सो, इट कुड बी पैरामीशियम ऑल्सो, इट इज़ द अमीबा ऑल्सो. सो every one of them, they are unicellular eukaryotes. Yes, and one more thing, the exception we have is of yeast. yeast भी एक यूनिसेलर यूकैरियोट है, ये एक यूनिसेलर फंजाई है, लेकिन एक्सेप्शनली इसे फंजाई में ही रखा गया है, इसे प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया. सो येस, दिस इज अ बोनस पॉइंट फॉर यू गाइज. Now, next, select incorrect statement about bacteria. First, they are the most abundant microorganisms. True. Second, hundreds of bacteria are present in handful of soil. ये भी बिल्कुल सही बात है, एक मुट्ठी भर सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज आ सकते हैं. Third, they can't live in extreme conditions like hot springs, desert and snow. And fourth is all of the above. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बार हम इनकरेक्ट की जगह करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एंड वी वुड हैव अटेम्प्टेड द आंसर ऑल ऑफ द अबव, बट फिर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा. दे आर आस्किंग टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ इफ यू रीड केयरफुल, इट इज़ दे कांट लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, विच इज़ द करेक्ट आंसर. Archaebacteria, they are known for this particular property, that they can live in extreme conditions. Scientifically, comma-shaped bacteria, they are also called as. So we have Cocci, Spirillum, Vibrio and Bacillus. अपने इन सब के नाम ही कर लेते हैं. Cocci is basically the spherical shaped bacteria. Spirillum is spiral. Vibrio is the comma shape and Bacillus is basically the rod shaped bacteria. So these are the 4 shapes of bacteria, and obviously we have our answer that Vibrio is the one having comma shape. Which of the following shapes of bacteria will have flagellates end? अब इसका आंसर अगर आप मेरे कवर पेज पे जाओगे, अगर आप मेरे थंबनेल पे जाओगे, आपको तभी मिल जाएगा. वहाँ पर 4 बैक्टीरिया की फ़ोटोज़ हैं विच इज़ फ्रॉम द NCERT, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली उन चारों शेप्स में सिर्फ स्पाइरलम ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके दोनों एंड्स पे फ्लैजेला होते हैं. सो दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अगेन वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया. फर्स्ट, दैट दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. येस, दे डू हैव. Second, that they show most extensive metabolic diversity. This is also true. Third, they all are autotrophs. And fourth, that they are placed in kingdom Monera. So I think बहुत easy है. The answer would be that they all are autotrophs. Some are autotrophs, some are heterotrophs. That would have been correct. Not all the bacteria are autotrophs. Mode of nutrition in bacteria is. अब लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं. सो दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन बी हेटरोट्रॉफ्स, ये बात हमें पता है. बट कैन दे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स? दोनों ही हो सकते हैं. फोटोसिंथेटिक का मतलब हुआ कि वो लोग लाइट यूज़ करेंगे, और कीमोसिंथेटिक का मतलब हुआ कि वो लोग केमिकल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे. यहाँ पर एक और डिफरेंस आई वुड लाइक टू प्लेस. जब हम लोग बैक्टीरियाज़ में फ़ोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा डिफरेंस आता है प्लांट्स के फ़ोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया के फ़ोटोसिंथेसिस में, कि जब ये फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये लोग H2O यूज़ नहीं करते, उसकी जगह दे यूज़ H2S. बिकॉज दे आर यूजिंग H2S, इसलिए ये लोग ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते. ऑक्सीजन इवॉल्व सिर्फ तब होगी अगर कोई ऑर्गेनिज्म H2O को यूज़ करेगा, तो देयर इज़ फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड द ऑक्सीजन इज़ इवॉल्व्ड. नेक्स्ट, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर. नाउ अब आप लोगों को ये ज़रूर पता लग गया दैट बैक्टीरिया दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और दे कैन बी दी हेटरोट्रॉफ्स. ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स में दे कैन बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक. बट अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया दे आर हेटरोट्रॉफ्स.
आर्के बैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यू टू, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं तो मेनली ये एक यूनिक फीचर है आर्के बैक्टीरिया का। अब क्वेश्चन ये आया कि आर्के बैक्टीरिया ऐसा क्यों कर सकता है, बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, या फिर उसका डीएनए का स्ट्रक्चर, या फिर 16S rRNA का सीक्वेंस। तो आर करेक्ट आंसर इज द सेल वॉल। आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, लिपिड्स की बनी है, एंड दैट लिपिड्स इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ब्रांच्ड चेन। बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू सर्वाइव इन टू एक्सट्रीम कंडीशंस। Eubacteria, they are characterized by, now eubacteria they are also called as true bacteria। तो इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा गया है बिकॉज ऑफ फर्स्ट इज रिजिड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए और दी आरएनए। तो दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ रिजिड सेल वॉल। मोड ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अगर मूव करना है तो दे कैन हैव पिलाई, दे कैन हैव फ्लैजिला, तो कुछ भी नहीं होता और कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। बैक्टीरियाज में लोकोमोशन के लिए सिर्फ फ्लैजिला होता है। पिलाए का काम है रिप्रोडक्शन करना, पिलाए का लोकोमोशन से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन सीलिया का भी दे देती तो भी वो गलत हो जाता। सीलिया भी सिर्फ यूकैरियोट्स में, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ऑल्दो फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। So mode of locomotion in bacteria is only and only by flagella. The common pigment in blue-green algae, which is cyanobacteria, and the plants is, दोनों ही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो दोनों के पास क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, लेकिन अब हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है क्लोरोफिल ए का। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर, क्लोरोफिल ए इज़ द यूनिवर्सल पिगमेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। बट ये भी ध्यान रखना कि वहाँ पर एक ऑप्शन आना चाहिए डैट दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर रहा है तो इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि उसके पास क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। क्लोरोफिल भले ही हो सकता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल ए, ठीक है। ऑल्सो देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ फाइकोरिथिन एंड फाइकोसाइनिन। जब ये फाइको वर्ड आता है, दिस फाइको इज पर्टिकुलरली फॉर दी एल्गे। तो फाइकोसाइनिन और फाइकोरिथिन आपको रेड आल्गे में मिल सकता है या फिर ब्लू ग्रीन आल्गे में मिल सकता है। स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स आर, फर्स्ट वी हैव इज हेट्रोसिस्ट, सेकेंड होर्मोसिस्ट, वेजिटेटिव सेल और नाइट्रोज सेल्स। सी नाइट्रोज सेल इज़ नथिंग, ये सिर्फ ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। वेजिटेटिव सेल इज़ समथिंग, ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन मेनली खाना बनाना है या फिर वी विल से कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। सेकेंड ऑप्शन जो है हॉर्मोसिस्ट, हॉर्मोसिस्ट इज़ अ सेल विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। एंड हेट्रोसिस्ट इज़ आर आंसर। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि बीजीएस में होता है नॉर्मली, एंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ऑल्सो इसके पास एक एंजाइम है विच इज़ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। Because of this particular enzyme, it is able to perform the function. Methanogens cannot be found in. Now methanogens are those organisms जो कि ऐसे एरियाज में रहेंगे जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। वो एनारोबिक हैं, वो प्रॉपर एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। तो वी हैव गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, दैट मीन्स वी हैव द कैटल एंड द काउज, तो उसमें तो होता है। मार्शी एरियाज आर अगेन दोज एरियाज जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम है बट दे हैव हाई अमाउंट ऑफ CO2, तो यहाँ पर भी हो सकता है। लास्ट के जो दो ऑप्शंस हैं अब वो थोड़े से सोचने वाले हैं। थर्ड वी हैव इज़ नियर स्फेग्नम। स्फेग्नम अगर आपको हल्का से याद हो तो ये प्लांट किंगडम में आता है एंड इट इज़ अ मॉस। ये एक ऐसा मॉस है जो एसिडिक मार्शी एरिया में ग्रो करता है। अब क्योंकि ये एसिडिक मार्शी एरिया में ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर रहा है। तो आर करेक्ट आंसर वुड बी पॉन्ड। पॉन्ड ऐसा एरिया जहाँ ऑक्सीजन होगी तो मेथेनोजन हमें वहाँ नहीं मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑल ऑफ द अबव। आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर न्यूट्रिएंट विच इज़ आयरन। तो देर आर 4 न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन।
विच डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कॉलेरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर और पोलियो। कॉलेरा की अगर बात की जाए तो इट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे। टेटनस इज कॉज्ड बाय tetanus is caused by Clostridium tetani. It is caused by Clostridium tetani. एंड अगर सिट्रस कैंकर की बात की जाए, इट इज़ कॉज्ड बाय जेंथोमोनास सिट्री। ये सारे के सारे क्या हैं? बैक्टीरियाज हैं। बट अगर पोलियो की बात की जाए तो पोलियो इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, पोलियो वायरस। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ पोलियो। Now majority of the heterotrophic bacteria are, see again we are going back to the same thing. बैक्टीरिया में पहले हमने ये पढ़ा था that they can be autotrophs and heterotrophs. फिर हमने ये पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ के साथ साथ दे कैन बी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फिर हमने ये पढ़ा कि ठीक है ये सब होता तो है लेकिन मेजॉरिटी क्या है, तो मेजॉरिटी वर हेट्रोट्रॉफ्स। अब क्वेश्चन ये है कि हेट्रोट्रॉफ्स में भी मेजॉरिटी क्या है? दे आर द पैरासाइट्स, दे आर एक्सटिंक्ट, they are decomposers or they are placed in kingdom Animalia. So our answer is that mostly heterotrophic bacteria are decomposers. That means वो dead and decay पे feed करते हैं। Bacteria play useful role in, bacteria किस लिए काम आते हैं? First we have is scurrying of leaves. Scurrying of leaves means leaves की fermentation में help करेगा ये। Second we have is curd formation, दही सबके घर में बन रहा है। एंड इसका तो नाम भी बड़ा अच्छा है, इट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म लैब। थर्ड इज़ क्लीनिंग ऑफ हाइड्स। नाउ दिस हाइड्स इज़ नॉट सम छुपने की जगह, द हाइड्स है रेफर्स टू द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो येस, जब भी आप किसी एनिमल की स्किन को निकालते हो तो आप तुरंत उसे नहीं पहन लेते हो या यूज़ कर लेते हो, हम उसको पहले ट्रीट कराते हैं विद ऑल दी सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स ताकि फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। माइकोप्लाज्मा आर, नाउ माइकोप्लाज्मा इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। एंड एक और ख़ास बात यह है, मैंने पहले भी बताया है, दैट दिस ग्रोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है दैट दे आर एनारोब्स। तो वी हैव टू ऑप्शंस जिसमें एनारोब मैंशनड है, पर उसके आगे दो वर्ड्स और हैं, वी हैव द ऑब्लिगेट एंड वी हैव द फैकल्टेटिव। आर करेक्ट आंसर इज ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट का मतलब है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, चाहिए तो हमें यही चाहिए और एल्स वी कैन नॉट सर्वाइव, जी हम मरने जा रहे हैं वाला फंडा होता है इनका। तो डैट मीन्स अगर आपने इन्हें थोड़ी सी भी ऑक्सीजन दे दी तो दे कैन नॉट सर्वाइव, वो तुरंत मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं फैकल्टेटिव की बात करती हूँ, फैकल्टेटिव दे आर बिट संस्कारी टाइप्स की, ओके फाइन अगर आप हमें ऑक्सीजन दे भी रहे हो तो भी वी कैन सर्वाइव। तो फैकल्टेटिव के आगे जो वर्ड लगा होता है ये उस चीज़ के साथ सर्वाइव करते हैं। डैट मीन्स प्लीज़ इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, फैकल्टेटिव एनारोब जो हैं, फैकल्टेटिव एनारोब जो हैं ये ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, मतलब ये प्रेफर करते हैं पहले कि हम ऑक्सीजन लें। अगर आपने इन्हें ऑक्सीजन नहीं दी तो दे कैन बिकम anaerobes. That means facultative anaerobes are primarily aerobic bacteria which can become anaerobes if required. Again same question that the smallest living cell without cell wall is, ये हमने अभी डिस्कस किया है, it is mycoplasma. But we have two more options, we have PPLO and the joker of the plant kingdom. ये दोनों जो हैं ये माइकोप्लाज्मा के ही दूसरे नाम है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम अ कैटल हु वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो उसके लंग्स के अराउंड जो फ्लूइड था विच इज़ अ प्लूरल फ्लूइड, वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया था। एंड इन ए जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट डू नॉट हैव अ सेल वॉल। तो ये कोई भी शेप ले सकते हैं। तो मैंने एक साथ ही आपको दो तीन चीज़ें बता दी हैं, इसलिए ये ऑप्शंस में डाला गया था। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट अप वी हैव इज अंडर फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू। अगर कंडीशन सब सही हैं, बैक्टीरिया के हिसाब से है,
तुमने बैक्टीरिया के हिसाब से टेम्परेचर दिया है, बैक्टीरिया के हिसाब से पीएच दिया है, तो बैक्टीरिया कहेगा कि ठीक है अब मैं रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो वो तब करेगा कैसे? तो वो करेगा बाय बाइनरी फिजन। स्पोर फॉर्मेशन या सिस्ट फॉर्मेशन सिर्फ तब होगा जब तुम बैक्टीरिया के हिसाब से कंडीशंस नहीं दोगे। दैट मीन्स इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, ओनली देन द बैक्टीरिया विल रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन और द सिस्ट फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी डैट वुड बी कि बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 19 to 20 मिनट्स। मतलब अगर कंडीशंस बिल्कुल सही हैं तो बैक्टीरिया हर 19-20 मिनट्स पर डिवाइड करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae? तो वी हैव नॉस्टॉक, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम और दी बेसिलस। अब ये जो लास्ट के 3 ऑप्शंस हैं ये हैं यू बैक्टीरिया के। क्वेश्चन में पूछा गया है BGA, सो आवर करेक्ट आंसर इज नॉस्टॉक। So that's it about the Kingdom Monera. We have covered almost every line of the NCERT and I hope you find this very useful. In the next video we'll be talking about Kingdom Protista and also I would expect you guys to post your score in the comment section.